Everyone, I hope all of you are fine and enjoying the blessings of Allah Almighty. So last time we have discussed a little bit about active and passive voice. I gave you the introduction of it, and then I have discussed few concepts related it. Also, I have discussed few points that you have to write in your copies, and you have to learn them by heart so that you can get basic concept of active and passive voice. Plus, I have discussed about the very first tense, that is present indefinite tense, how to change how to make passive voice of present indefinite tense active voice. I have discussed the formula as well. So I guarantee you that if you will collaborate that video and today's video, then you are going to get almost 90% concept of active and passive voice. Because in today's video I would add a lot more about active and passive voice, and if you would watch these two videos carefully, then you are going to get 90% of the concept. So let's start without wasting your time. Let's start, but before starting I would request you to please subscribe my channel, like the video if you liked it, and give me your feedback. So again, active to passive voice. Today I'll discuss about tenses, that how to, which tense would be changed into which tense. So if we talk about indefinite tenses, as you guys know from my tenses video, that there are three kinds of indefinite tenses, that is present indefinite, past indefinite, and future indefinite. So if we have active voice sentence of present indefinite, then we'll change the sentence like this. Like we'll change in present indefinite tense, we don't use is MR as an helping verb, but if we have got the active voice of present indefinite tense, then we, while making the passive voice, we'll use the helping verb of is MR plus third form of verb. One thing that you have to keep in your mind, that we use only third form while writing a passive voice of any kind of sentence, right? ये एक मेजर चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है, and that is permanent. यानी in any tense, while writing the passive voice of any tense, you guys are going to use third form of verb, nothing else. In past indefinite tense, again, while changing the passive voice, you have to use was verb and then third form of verb. In future indefinite tense, you have to use will be and shall be and third form of verb. Let's move towards the examples. If we talk about present indefinite tense, and we know that in present indefinite tense there is no such helping verb like is MR. Present indefinite में is MR नहीं होता, तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इज़ MR यूज़ करेंगे. द एग्ज़ाम्पल इज़ दे स्टडी उर्दू. ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जुमला है. इसको जब हमने पैसिव वॉइस करना है तो हमने ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, दे को हमने एंड पे जाके चेंज कर देना है. उर्दू इज़ स्टडीड बाय देम. ठीक है, ये वो रूल है जो मैंने आपको पहले बताया था कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है. यानी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जिस तरह से हमने ये रूल्स पढ़े थे. अगर आपको याद नहीं है तो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा वीडियो एक दफ़ा से फिर. अच्छा, सेकेंड थिंग दैट आई सेड, दैट पास्ट इंडेफिनाइट, वाइल चेंजिंग पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, हम क्या करेंगे, वॉज वर्ब यूज़ करेंगे, साथ में उसके थर्ड फॉर्म होगी. यू कैन सी बाय द एग्जांपल, अली एट अ केक. अली एक केक खाता है, तो अ केक वॉज ईटन बाय अली. इसमें अब क्या हुआ, हमारा जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया. सो फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनाइट एक्टिव वॉइस में विल और शैल यूज़ होता है. जब पैसिव वॉइस करेंगे तो विल बी और शैल बी यूज़ करेंगे, लाइक दिस. दे विल मीट मी, पैसिव वॉइस. मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कन्वर्ट होके आई में आ जाएगा. आई के साथ हमेशा शैल यूज़ होता है, और पीछे बताया कि शैल और विल के साथ बी लगाएंगे आप, तो आई शैल बी
met by, they जो है वो कन्वर्ट हो गए them हो गया. That's how we change the pronouns. इनका एक अलग रूल है pronouns का, ये भी किसी दिन आपसे डिस्कस करूँगी मैं. The next is continuous tenses. Indefinite हो गया, अब continuous tenses की बात करते हैं. तो जब present continuous का एक्टिव वॉइस हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम इज़ एम आर के साथ बीइंग लगा देंगे और बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होंगी. सेम इज़ द केस विद पास्ट कॉन्टीन्यूस पैसिव वॉइस, वॉज और वर के साथ बीइंग लगा देंगे एंड देन विल यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, यानी आपने कभी ग्रामर में फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस यूज़ होता हुआ लैंग्वेज में नहीं देखा होगा. अगर हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं तो एग्जांपल है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के एक्टिव वॉइस की, जिसमें लिखा है बरवाना इज़ कुकिंग. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज़ और फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है. बरवाना इज़ कुकिंग फूड. सो इफ वी टॉक अबाउट द पैसिव वॉइस, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा. फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय बरवाना. वी आर लर्निंग आवर लेसन्स. Our lessons are being learned by us. So the doctor was examining me. Now this is a sentence of past continuous. He was being examined by the doctor. The doctor, he जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने ही को, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसको कन्वर्ट करके हमने ही कर दिया. द डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट था, यहाँ पे इसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया. So if we talk about अच्छा, one thing that you have to note down, that you have to keep in your mind कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, राइट. अब अगर हम परफेक्ट टेंसेस की बात करें, ऊपर हमने इंडेफिनाइट कॉन्टीन्यूस की बात की, अब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं. तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होता है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैज़ और हैव के साथ बीन लग जाएगा और साथ में थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है. पास्ट में हम एक्टिव वॉइस में हैड यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड के साथ बीन यूज़ करेंगे और साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगी. फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव लगता है, लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगाएंगे हम, साथ में थर्ड फॉर्म लग जाएगी, राइट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जांपल्स, प्रेजेंट परफेक्ट की एग्जांपल अगर आप देखें तो ही हैज़ सीन दिस पिक्चर, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का जुमला. द पिक्चर हैज़ बीन सीन बाय हिम. द पिक्चर ऑब्जेक्ट था, यहाँ सब्जेक्ट बन गया. ही हमारा सब्जेक्ट था, यहाँ हमने कन्वर्ट करके उसको ऑब्जेक्ट बना दिया. तराना हैड विजिटेड मुल्तान. अब इसमें हैड यूज़ हुआ है तो दैट मीन्स कि ये पास्ट परफेक्ट का जुमला है. इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एज आई टोल्ड यू के हैड के बाद बीन लग जाएगा. मुल्तान हैड बीन विजिटेड बाय तराना. अब फ्यूचर का सेंटेंस है दे विल हैव फिनिश देयर वर्क बाय 10. 10 बजे के करीब अपना काम ख़त्म कर लेंगे. सो देयर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम एट 10. एट 10 हम एंड पे ही लाएंगे. सो दैट्स हाउ यू चेंज परफेक्ट टेंसेस इनटू पैसिव वॉइस. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस नाउ. Questioning sentences means those active voices having questioning word like why, where, when, will, has, shall. Another thing that you have to keep in your mind that if there is must in the question, then you don't have to make any change. Now let's move towards the example so that you can get the concept easily. I have a sentence of active voice. Why does he trouble his neighbor? वाई एज इट इज़ रहेगा. डज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का हेल्पिंग वर्ब है, एंड एज आई टोल्ड यू कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम कन्वर्ट करके इज़ एम आर यूज़ करते हैं, तो डज की जगह हम आर यूज़ करेंगे. वाई आर हिज
नेबर्स, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे पहले यूज़ हो गया. नेबर्स, ट्रबल फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे थर्ड होगी. वाई आर हिज नेबर्स ट्रबल्ड बाय हिम, ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया. सो वी टॉक अबाउट सेकेंड एग्जाम्पल, वाई डज ही ट्रबल दैम, वाई आर दे ट्रबल्ड बाय हिम, right? So that's how we change questioning active voices into passive voices. WH वाले क्वेश्चनिंग वर्ड होंगे वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, यू कैन सी दैम. बट बाकी जो रूल्स होंगे वो आप अकॉर्डिंगली चेंज करोगे, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अच्छा, नाउ देयर कम्स द टर्म्स टाइम फॉर ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर किया जा रहा होता है, रिक्वेस्ट किया जा रहा होता है, रिक्वेस्ट की जा रही होती है. सो वी यूज़ बी विद लेट, वी डोंट यूज़ बी विद हैव. फॉर एग्ज़ाम्पल, शट द डोर आफ्टर यू कम इन, दरवाज़ा बंद कर देना जब तुम अंदर आ जाओ. इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्डर. सो लेट, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लेट यूज़ करते हैं. Let the door be shut after you come in, right? Rest of the sentence would be same. बाकी सारा सेम होगा, बस आप इसमें let का एडिशन कर लोगे, ठीक है. So that's how you deal with the order and request sentences. These are all like a slightest introduction. If you want to exercise and if you want to practice it, then you have got a lot of exercises in your books, and plus you can get them from like from your internet. तो ट्राई कीजिए कि इन कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व करें, बार बार सॉल्व करें, मुख्तलिफ़ एक्सरसाइजेज से आप इनको सॉल्व करें. तो इस तरह से आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.